کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو ہی سب کا اسلام ہے, لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور. آپ نے دیکھا کبھی گستاخی کرتے ہوئے یا کچھ ایسی بات؟ ظاہر ایک جو معاہد ہے اس کو جب توحید اس کے سامنے پیش کریں گے اس کو تو وہ صحیح نہیں لگے گی نا, اور مشرک اس کو تو صحیح لگے گی. اس نے مجھے بتایا تھا کہ یار آپ جہلم میں رہ رہے ہو تو مرزا صاحب وہاں ہوتے ہیں, کبھی گئے ہو کبھی دیکھا ہے؟ میں کہا یار میں گیا تو نہیں ہوں, کبھی سنا تھا اس کے کہنے پہ سنا تھا. پھر اچھا, آپ کا وہ فرسٹ تعارف پہلی دفعہ؟ جی پہلی دفعہ. کون سی دنیا میں رہتے تھے آپ؟ کیا کوشچن؟ جی کوشچن بھی کیا ہے, اس کا بہت اچھا آنسر بھی مل گیا, اور آپ انشاءاللہ وہ گھر جا کے وہ کلپ کاٹ کر لیں گے اپنے لیے. اچھا, نہیں یہ تو کہتے ہیں کہ کوشچن تو اپنے بندوں کے لیتا, آپ کا کیسے کوشچن لے لیا؟ اب میرا باپ فرشتہ بھی نہیں ہے, نہ میرا دادا فرشتہ تھا, اب ان کے پاس جا کے میں نے کیا لینا ہے؟ میں تو ان کے لیے مقصود کی دعا کرنا. صحیح بات ہے, صحیح بات. کیسے آنا ہوا کمل بھائی؟ بس علی بھائی کی محبت کی چلائی ہے. اچھا, میں دیکھنے آیا ہوں وہ گمراہ کیسے کرتے ہیں. اچھا, وہ سمجھ میں آئی ہے گمراہ ہو چکے, آپ کو پتہ بھی نہیں ہے. اگر یہ گمراہی ہے, ایسی گمراہی ہمیں پھر قبول ہے. دعوت اسلامی کا مزاج کچھ اور, انجینئر کا مزاج کچھ اور, تو کیسے باتیں سم ہو گئی؟ حقیقت جو ہے نا وہ تسلیم کرنی پڑتی ہے. صحیح ہو گیا. حقیقت جو ہے وہ تسلیم کرنی پڑتی ہے, ہوتی تلخ ہے تھوڑی. ہمارا مقدہ فکر بریلوی کہہ لیں, بریلوی. تو وہ تو کہتے ہیں نہیں سننا, آپ علماء کے گستاخ ہیں نا, آپ نے کیوں سنا انجینئر؟ تو ان لوگوں نے ماشاءاللہ سے بڑا اچھا کام کیا. ابھی تک ہمارے خاندان میں یہ چیز ہوتی ہے, چالیساں وغیرہ اور اس طرح کی جتنی بھی بدعات ہیں انہوں نے نہیں کروائی. انہوں نے نہیں کرائی. ٹھیک ہے, اور یہ مطلب کہ فرقہ واریت میں ایک قلعہ ٹھوکنے والے کام کر رہے ہیں. مطلب کہ ایسے ہی ایسے ٹھوک دیا, بالکل ٹھوک دیا ہے, ٹھوک دیا, منجی ٹھوک دی. پاکستان میں ظاہر بریلویت کا راج چل رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہاں سے جو بندہ باہر جاتا ہے وہ جب ادھر کے طور طریقے دیکھتا ہے اس پہ تھوڑا مائنڈ کھل جاتا ہے کہ بھائی ادھر کیا ہو رہا ہے, ادھر کیا ہو رہا ہے. پھر باہر بھی کھائی ہے میں نے. اچھا, مسجد کے امام سے. وہ کیوں؟ رفع دین کی وجہ سے. اب اتنی ضرورت اس نے مارا. وہ میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اسلام تک بھی کرنا مشکل ہے, ان کو دیکھنا تک مشکل ہوتا ہے. لیکن ان کو تھریٹ بہت ہے نا, انجینئر صاحب کو کون سا تھریٹ ہے؟ حالانکہ تھریٹ سب سے زیادہ ان کو. اور دعوت اسلامی سے جو دین سیکھا تھا اور جو انجینئر نے دین بتایا, فرق تھا؟ بہت فرق ہے. اچھا, وہ تو میٹھا میٹھا تھا, وہ زیادہ پیارا ہوگا. یہ حقیقت ہے. میں کسی کو جو مجھے کہتے ہیں نا بھی ہاں یہ سن رہا ہے, میں وہ کہتے ہیں اس کو نہ سننا کا, میں بتاؤں کیوں, بس وہ یہ گستاخی کرتا ہے. میں کہا کون سی گستاخی مجھے بتاؤ تو صحیح, کو ویڈیو تو مجھے دکھاؤ. وہ ہمیں لائبریری میں لے گئے, ہم نے انجینئر صاحب کی مدد سے, اللہ کے بعد انجینئر صاحب کی مدد سے ہم نے ان کے ساتھ باقاعدہ ڈیبیٹ کیا. انہوں نے مسلم اور بخاری کو چھوڑ کے طاہر القادری صاحب کو لے آگے کتاب کو. اچھا اچھا, ٹھیک ہے. جماعت کے ٹائم وہ خود یہاں موجود نہیں ہوتے تھے, ان کے وہ مسجد ان کے انڈر تھی, لیکن خود موجود نہیں ہوا کرتے. جس کا دل کرتا ہے وہ جا کے جماعت کرا دیتا ہے. جب نماز سلام پھیر دیا تو اس نے تمہیں شرم نہیں آتی, اتنی اونچی اونچی تم سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے. اچھا یہ بتائیں, انجینئر صاحب کے اوپر الزامات بھی لگاتے ہیں, بریلوی تو بہت زیادہ لگاتے ہیں, گستاخ ہے, اس کو سننا نہیں ہے, کیا کہتے ہیں, نہیں سننا چاہیے, ان کی بات ماننی چاہیے؟ میں کہتا ہوں جو ان کو نہیں سنتا نا وہ گستاخ ہے. لائیو سننے میں اور ویڈیو میں لائیو میں بڑا فرق ہے. تو اس میں ذرا کہ دفعہ جو گرج ہے نا وہ دل کو پکڑتی ہے. اچھا, ویڈیو میں وہ چیز نہیں ہے, لیکن لائیو میں جو مزہ ہے. تو پہلے تو معاملہ بہت خراب تھا, ہمارے گھر کا جو سیریس سی بات ہے بہت خراب تھا. ٹھیک ہے, یہ گوشت پاک کو پکارنا سارے مطلب توحید سے جو ہے نا آ رہی تھے سارے, کوئی چکر نہیں تھا ایسا ویسا. تعارف اس وجہ سے تھا کہ ہمارے محلے کے جو مولوی حضرات ہیں نا وہ انجینئر صاحب کو بہت برا بھلا کہتے تھے, اور کافی ٹائم میں نے سنا میں نے دیکھا, سوچا کہ ایک بار میں دیکھوں تو صحیح وہ کیا رہے ہیں. کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے محمد فرحان قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جہلم اکیڈمی محمد فرحان قریشی. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سیشن ختم ہوا جاتا ہے, حال میں آئے ہوئے لوگوں سے کچھ بات کرتے ہیں. تو آئیے
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया? खुरम शहजाद खुरम भाई किधर से आए? जलालपुर जट्टान से। जी जलालपुर चट्टा। खैरियत थी? कैसे आना हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह, बस अली भाई से मिलने आए। फर्स्ट टाइम आया? ये तीसरी दफ़ा है तीसरी दफ़ा। जी। अच्छा, पहले जो इनका तारुफ था आपको जो हुआ था सबसे पहले, जी। वो नेगेटिव था पॉजिटिव था? क्या था? नेगेटिव ही था। अच्छा, क्या सुन लिया था? ये कि जो बाबू के खिलाफ बोलते थे, पहले जगह चेक करें क्या बोलते हैं। आप बाबू वाले थे? पहले मैं बाबू वाला था, फिर अहले हदीस हुआ। अच्छा। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम। आप मुस्लिम हैं? अब मुस्लिम। ठीक हो गया। आप आपकी फैमिली का क्या स्टेटस है? उनको भी दावत रखते हैं? जी समझाया? दावत रखता हूँ, लेकिन वो ज़्यादा तकरीबन अहले हदीस की हैं, मिक्स ही कर लो। मिक्स ही कर, सही होगा। अच्छा, आज आए आपने पूरा दर्स सुना, जी दरअसल माहौल भी अकेडमी का देखा, आपका पहले भी एक्सपीरियंस है, जी। कैसा है अकेडमी का माहौल? इंजीनियर साहब का रवैया, उलमा इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये सामने भी नहीं आता, और गुस्ताख रसूल, गुस्ताख साहबा, क्या क्या आप क्या कहते हैं? मैं तो ज़ाहिर मुस्लिम को यानी सारी बात समझ दो। आज मेरा एक यानी कि दोस्त है, कज़न है, उसको लेके आए हम साथ, तो इस वजह से दोबारा आना हुआ। तो आपने देखा कभी गुस्ताखी करते हुए या कुछ ऐसी बात? ज़ाहिर एक जो मुआहिद है उसको जब तौहीद उसके सामने पेश करेंगे, उसको तो वो गुस्ताखी नहीं लगेगी ना, और मुशरिक उसको तो गुस्ताखी लगेगी। हाँ, मसला ये है कि वो मुशरिक है, मुशरिक इसलिए उसको गुस्ताखी लगती है। एक बंदा अल्लाह वाला है, मुआहिद है, उसको तो गुस्ताखी नहीं लगेगी। ये बात है, ये तो अपनी अपनी सोच के हिसाब है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। आ जाए। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? हैदर अली, हैदर अली, माशाल्लाह। किधर से आप? फैसलाबाद। फैसला। कितने बंदे हो? हम 2 लोग आए हैं, मेरे साथ मेरा कज़न है। मिलने आए हो या अपने काम से आए थे? नहीं, आए तो मिलने थे, वाइफ ने अकेले नहीं आने दिया। फिर उनको सियालकोट छोड़ा है, मामू लोग हैं वहाँ पे, तो कज़न को लेकर अब यहाँ पे आए हम ये लोग। अच्छा, फर्स्ट टाइम आए हो? फर्स्ट टाइम इनका तारुफ कब हुआ? तारुफ ऐसे ही वीडियोस के साथ, फेसबुक यूट्यूब। नेगेटिव था? नेगेटिव तो नहीं था, बस वीडियोस मैंने देखी थी शिया के मतलब नमाज, वो हाथ छोड़ के पकड़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो मैंने कभी सुना नहीं था कि हाथ छोड़ के नमाज। मैंने कहा ये बंदा क्या बोली जा रहा है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब तहकीक की तो फिर साबित हुआ, हदीस से भी साबित है, तो फिर मैंने वीडियोस देखनी शुरू की, तो काफ़ी मुतासर हुआ। काफ़ी मुतासर हुआ। अच्छा, यानी इससे पहले आपको दीन का उतना शऊर था? शऊर मैंने बेसिकली ना ज़्यादा तलीम हासिल की है नूरानी वगैरह अहले हदीसों की मस्जिद से। ठीक है। यानी कि बाबू बूबों से तो पहले ही मैं ज़रा ठीक है, हो गया। तो ज़्यादा तारफ़ फिर इंजीनियर साहब की वीडियो सुनने से हुआ। ठीक होगा। अच्छा, फैमिली का क्या स्टेटस है? उनको भी दावत रखी, हाँ, समझाया, घर माने में- घर वाले वालिदैन? घर में अम्मी वगैरह को समझाता रहता हूँ, वो आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं इस तरह। फर्स्ट टाइम आए हो? जी फर्स्ट टाइम। कैसा था आज का प्रोग्राम? कैसा था बहुत कुछ आज अच्छा पूरा लगा, प्रोग्राम देखा? अकेडमी का फर्स्ट एक्सपीरियंस शेयर करना चाहो? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बच्चे? शुक्र अल्लाह का। क्या नाम है बेटा? मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद उस्मान। किधर से है? लाहौर से। लाहौर। लाहौर से। कितने बंदे हो? अकेला? अकेले अकेले हैं। अकेले? अकेले। कैसे आए? कैसे? लोकल गाड़ी में? हाँ लोकल गाड़ी में बस। अच्छा, घर वालों ने इजाज़त दे दी कि छुप नहीं, के आया? नहीं वाइफ को बता के। अच्छा, वाइफ को बता दिया, शादीशुदा है। हाँ। अच्छा, ये बताओ कैसे आना हुआ? कैसे? ये जो सफ़र किया, सफ़र अली भाई से मिलने के पास इनका तारुफ कब हुआ, कैसे हुआ? तकरीबन 2017 या 18 का। अच्छा। पहली फर्स्ट वीडियो मैंने देखी इनकी, ये सऊदिया को लाल माल वाला कोई है मौलवी, वो हज़रत अली को मनकुल नफादन अली मौला, ये वाली हदीस थी। मैं बरेलवी था उस वक्त। अच्छा। मैंने देखी, मैंने कहा यार ये बंदा अच्छा है, नहीं था पता कि ये क्या चीज़ है, इंजीनियर बरेलवी था। मैंने कहा बरेलवी लग रहा है, बरेलवियों के हक़ में बात की थी। तो मैंने फर्स्ट वीडियो देखी, अपने दोस्तों को भी दिखाई। वो उस वक्त पहाड़ियाँ बना रहे थे, पहाड़ियों को उधर बहुत 12 रबी अव्वल चल रही थी। हाँ हाँ। तो वो फर्स्ट वीडियो देखी, मैंने कहा यार बंदा चाहिए, बरेलियों के हक़ में बात कर रहा है। फर्स्ट वीडियो देखी, वो वैसे मैंने जो क्लिप खोला, आगे ये जो पहाड़ियाँ चल रही थी उनके खिलाफ वीडियो आ गई थी। अच्छा। मैंने फिर देखा, आस्ता सर्च करना शुरू किया, बंदा है क्या, ये शिया है, सुन्नी है, कौन है। फिर आस्ता आस्ता ऐसे वीडियो देखता गया। उस पूरी रात में नहीं सोया। अच्छा, पूरी रात फर्स्ट वीडियो मैंने देखी, फिर दूसरी वीडियो देखी, मुझे सुबह अजानें हो गई, मैं सारी मुकम्मल वीडियो देखना शुरू हो गई। ये बंदा क्या है, सर्च करनी शुरू कर दी, बंदा है कौन। तजस्सुस में कि है क्या? है क्या जी। जाहिर सी बात है, दीन का इतना नॉलेज भी नहीं था, कभी पहले किसी ने बताया ही नहीं। बस हमें मोटी मोटी चीज़ों का पता है, शिया ऐसे मातम करते हैं, ये बस आराम चीज़। बस उसके बाद दीन की नॉलेज आनी शुरू हो गई।
अच्छा। उनसे आज अल्लाह का क्या शुक्र चीज़ है। पसंद आई इंजीनियर साहब की? इंजीनियर- विद रेफरेंस बात बस करना, रेफरेंस खुल के बात करना, बोल्ड जो तरीके बंदा से बोलना। बात कर रहा है उसके साथ, जो बंदा राइड कर रहा है अच्छी बात कर रहा है उसे कहना अच्छी है। हर फिरके में जो अच्छी बातें हैं उनको हाईलाइट करता है, जो बुरी बातें हैं वो डंके के जोर पर उन्हें बुरी कहता है। बस यही बात है मेरी माशाल्लाह। फैमिली को भी दावत दी, समझाया? माशाल्लाह मेरी वाइफ है माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये पेरेंट्स को? पेरेंट्स अभी तक नहीं आ रहे। हाँ, चलो दावत तो रखो ना। दावत दी है। अब उनके सामने रफल जिदैन करता हूँ, कुछ नहीं कहते, बस यही है। आज का कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा है। आज कुछ जो नहीं। पूरा सेशन खुद देखा लाइव, वीडियोस में तो देखा, आज फर्स्ट टाइम लाइव आया ना? नहीं, फर्स्ट टाइम मैं सेकंड। अच्छा, सेकंड टाइम आया, आगे भी ये एक्सपीरियंस किया हुआ है? हाँ जी, किया। ठीक हो गया, सही है। चले, बहुत शुक्रिया जज़ाक। और कौन है जी? आइए सर, आइए। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या नाम है? क्या शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है भैया आपका? डॉक्टर अंसर बात, डॉक्टर साहब किधर से आए? मैं पीर खाना, ये बिम्बर की तरफ। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब कैसे आना हुआ? मेरा एक दोस्त है एयरफोर्स से रिलेटेड है, सखर से। उसने मुझे बताया था कि यार आप जेलम में रह रहे हो तो मिर्ज़ा साहब वहाँ होते हैं, कभी गए हो, कभी देखा है? मैं कहा यार मैं गया तो नहीं हूँ, कभी सुना था? सुना था, क्या उसके सुना था? कहने पे सुना था। फिर अच्छा, आपका वो फर्स्ट तारुफ पहली दफ़ा? जी पहली दफ़ा कौन सी दुनिया में रहते थे आप? इसी नहीं, इस दुनिया में तो नहीं रहते आप। इस्लामी की दुनिया में रहता था। मदनी मुन्ने थे। मदनी मुन्ने थे, फिर भी पता तो चल ही जाता। उसने मुझे बताया, मैंने फिर अच्छा। स्पेशली प्रोग्राम एक दो सुने मैंने इंजीनियर साहब के, तो बहुत अच्छा लगा। बड़े अरसे से मैं सोच रहा था मुलाकात हो जाए। नहीं, एक मिनट, आप उस वक्त दावत इस्लामी से सारा रिलेटेड? जी जी, दावत। इंजीनियर कैसे आपको हजम हो गया? नहीं, बड़ी कड़क बातें, इतनी सीधी बात वही ना, बोल्ड कि- बातें। जी, बात वही आ जाती है कि ज़ाहिर है जो दोस्त कहता है ना हाँ, उसकी हाँ। ज़्यादा सुनी जाती है। आपके दोस्त ने मुझे दोस्त ने मोटिवेट आपको मोटिवेट किया, गाइड किया। मैं आपसे पूछ रहा था कि भी दावत इस्लामी का मिजाज कुछ और, इंजीनियर का मिजाज कुछ और, तो कैसे बातें हजम हो गई? हकीकत जो है ना वो तस्लीम करनी पड़ती है। सही हो गया। हकीकत जो है वो तस्लीम करनी पड़ती है, होती तल्ख है थोड़ी, मगर ये है कि अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत। यानी मैं तो आज आ रहा था ना, तो मेरा प्रोग्राम था कि एक ना मैं बेस फाउंडेशन भी चला रहा हूँ ना, कि एक शील्ड लेके जाऊँ, बूफे लेके जाऊँ, फिर अपना इंजीनियर साहब को पेश करूँ। फिर मैंने कहा इधर सिक्योरिटी रिस्क होंगे, नहीं, तो मैं- इस तरह हाँ, हो भी नहीं सकता ना। हो भी नहीं सकता। हाँ। तो मगर ये है कि आज मेरी ख्वाहिश पूरी होगी कि मेरी इनसे अच्छा। मुलाकात हो जाएगी ठीक इंशाअल्लाह। होगा। यानी दावत इस्लामी से जो दीन सीखा था और जो इंजीनियर ने दीन बताया, फर्क था? बहुत फर्क है। अच्छा, वो हकीकत- तो मीठा मीठा था, वो ज़्यादा प्यारा होगा। ये हकीकत है, ये हकीकत है, दीन में खरी बात। ये हकीकत है। सही होगा, सही होगा। अच्छा, आज का जो एक्सपीरियंस रहा, आज जो आपने खुद देखा, वीडियोस में देखना, लाइव देखना, कितना फ़र्क है? अच्छा लगा, मगर यह है कि वीडियो में मतलब बिल्कुल आराम से तसल्ली से सुनता रहता है। ज़ाहिर है मुखालफत तो घरों में होती है ना, कि यहाँ पे एक यहाँ रूहानी पर- फीलिंग जी, भी आती है। यहाँ पर अच्छा, ये मेरी- बताएं, इंजीनियर साहब के ऊपर इल्ज़ामात भी लगाते हैं, ड्रिल भी तो बहुत ज़्यादा लगाते हैं, गुस्ताख है, इसको सुनना नहीं है, क्या कहते हैं? नहीं सुनना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए? मैं कहता हूँ जो इनको नहीं सुनता ना वो गुस्ताख है वो गुस्ताख है? मेरे हिसाब से। ठीक हो गया, कि ज़बरदस्त। इनको सुनना चाहिए, इनकी जो बातें हैं उन पर अमल करना चाहिए। तो हकीकत पे आ जाना चाहिए हम लोगों को, हाँ, हकीकत मान लेनी चाहिए, हकीकत पे आ जाना चाहिए। आ भी जाना चाहिए। सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। आइए, और कौन है? आप पहले भी हो गए गए? जी पहले भी आए हम। सलाम अलैकुम। अभी पिछले दिन 2-3 वीक पहले आए थे? जी 2 वीक पहले आए थे हम। अच्छा, कैसे आना हुआ, दोबारा आ गए? तो आज ये डॉक्टर साहब भी हमारे, अच्छा, तो इन्होंने पता नहीं था अकेडमी ये डॉक्टर साहब जो आए हैं? जी हाँ, 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 डॉक्टर अंसर साहब, तो इनको साथ लेकर आए हैं। आप लेके आए हो? जी, हम माशाल्लाह, लेकर- एक और तोड़ लिया। एक और तोड़ ली है। अच्छा, यानी दावत का काम सही चल रहा है? दावत का काम चल रहा है इंशाल्लाह। हाँ, मैंने उनसे बात की है, वो तो माशाल्लाह बहुत उनसे इंस्पायर हुए हैं, और वो तो कह रहे हैं कि जो इंजीनियर को नहीं सुनता, मैं तो कहता हूँ वो गुस्ताख है। हाँ, वो तो इंशाल्लाह बहुत दावत का काम ये भी कर रहे हैं अभी, तो काफ़ी बंदों को इस तरफ जो है कॉल कर रहे हैं अभी इंजीनियर साहब की तरफ। चले, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आ जाए। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद कामिल है सर। मोहम्मद कामिल जी। कामिल भाई किधर से आया? मैं लाहौर से हूँ, वैसे मैं सऊदीया होता हूँ, छुट्टी आया हुआ था लाहौर से? हाँ जी, तो अभी लाहौर से इधर अकेले आए? हाँ, अकेला। हाँ जी, मैं अकेला आया। तो एक और भी बच्चा भी मैंने देखा लाहौर से आया हुआ था। हाँ जी।
कैसे आना हुआ कमल भाई? बस अली भाई की मोहब्बत की चलाई है। अच्छा। मैं देखने आया हूँ वो गुमराह कैसे करते हैं। अच्छा। वो समझ में आई है कि- गुमराह हो चुके हैं, आपको पता भी नहीं है। अगर ये गुमराही है, ऐसी गुमराही हमें बिल्कुल कबूल है। अच्छा, कब हुआ तारुफ? मुझे तकरीबन कोई साल डेढ़ पहले 3-4 ऐसी बातें थी मुझे समझ में नहीं थी आ रही, तो मैं कई वीडियो देखता था, अली भाई की वीडियो होती थी मैं स्किप कर देता था, मैं कहा ये इसको नहीं सुनना। अच्छा। फिर मैंने देखा क्यों यार नहीं सुनना था, मतलब क्या था? या सुना हुआ था कि ये इतनी गलत बातें करता है, गुस्ताख है, सब। ठीक हो गया। मैंने कहा यार देखो, और ये जो एक ट्रेंड भी ये चलाते हैं उलमा कि इसको नहीं सुनना, वो भी दिमाग में था? हाँ वो भी था, लेकिन हाँ, मैं हाँ, सुना, मैं देखा तो सही ये कौन सा तीर है जो लगता है कैसा। हाँ। जब मैंने सुना वो मुझे समझ में आ गई कि नहीं भाई जी जो बातों के जो सवाल है ना, जो मुझे जवाब नहीं मिल रहे वो मुझे मिले। अब मैं किसी को जो मुझे कहते हैं ना भी हाँ ये सुन रहा है, मैं वो कहते हैं इसको ना सुना कर, मैं बताऊँ क्यों, और बस वो ये गुस्ताखी करता है। मैं कौन सी गुस्ताखी मुझे बताओ तो सही, को वीडियो तो मुझे दिखाओ। वो फिर दाएं बाएं हो जाते हैं, फिर मैं कहता हूँ बस ठीक है, अगर नहीं है यानी इनके पल्ले कुछ भी नहीं है, हाँ, सब बस- झूठ फ्रॉड। बस ऐसा ही है। वैसे हमारा भी तो हक बनता है ना, अब इनके गिरबान पकड़े, इनसे पूछा जाए कि भाई ये आप क्यों कहते थे इसको नहीं सुनना गुमराह? हाँ, बस दुआ अल्लाह ताला कि इंसान सबको दीन की समझ अता फरमाए और हक वाजिया हो सके। अच्छा, आज आपने फर्स्ट टाइम आए? जी मैं फर्स्ट टाइम। पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। लाइव सुनने में और वीडियो में लाइव में बड़ा फ़र्क है। तो इसमें ज़रा कि दफ़ा जो गरज है ना वो दिल को पकड़ती है। अच्छा। तो वीडियो में वो चीज़ नहीं है, लेकिन लाइव में जो मज़ा है। अच्छा, ये जो लोग थे, आप फर्स्ट एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये इनके अपने होते हैं? इल्जाम है ना, ये कहते हैं अपने लोग हैं, बंदा कमरे से बाहर ही नहीं निकलता, सवाल अपने देते हैं। नहीं ये नहीं, है? मैं खुद लाहौर से हूँ, फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं, और कितने आदमी फर्स्ट टाइम इधर आए हैं, तो नहीं ना कोई इनका अपना लोग, अपना कमरा, कहते सिलेक्टिव सवाल, अपने सवाल होते हैं। नहीं जो मर्जी आम बंदा सवाल दे तो जो लेता ही मर्जी नहीं। कर लो। अच्छा, कोई ऐसा चक्कर नहीं? नहीं ऐसा कोई चक्कर नहीं। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सब। चलें, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है? मेरा नाम उमर है और अल्हम्दुलिल्लाह अली भाई को सुनते हुए तकरीबन 5 साल हो गए। ठीक है। और ना सिर्फ खुद सुना है, अल्हम्दुलिल्लाह अपने ख़ानदान में जितनी भी यंग जनरेशन है ना वो सब अली भाई के स्टूडेंट हैं। उसके अलावा अपने यूनिवर्सिटी में भी फ्रेंड्स वगैरह इस सर्कल में, और उसके अलावा हमने ना सिर्फ ये कि अपने ख़ानदान में बल्कि जो मस्जिदों के, जिस तरह हमारी यूनिवर्सिटी की मस्जिद, उसके मुफ्ती साहब हो गए, हमारे गाँव मरी हमारा गाँव है, वहाँ के जितने भी बड़ी बड़ी मस्जिद हैं उनके साथ भी डिबेट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें भी जो है अली भाई की अल्लाह पाक ने और इस सिलसिले को अल्लाह और बढ़ाए। तो उनकी यंग जनरेशन तो हो गए, और जो बुजुर्ग हैं वो? हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फादर की तो डेथ हो गई है, मेरी जो मदर हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियर साहब को सुनती है। ठीक है। और उसके अलावा बाकियों में थोड़ा थोड़ा मामलात चल रहे हैं, अभी हम समझाने की कोशिश करते हैं, काफ़ी लोग आ रहे हैं इस तरफ, लेकिन इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे अच्छा, कि आप मरी से आए? जी नहीं, हम पिंडी से हैं, गाँव मरी है। गाँव मरी है। जी, ये आप बातें जो कर रहे हो कि जहाँ पे तौहीद की बहारें आ रही है, वो मरी साइड है? मरी में भी आ रहे हैं हमारे कज़न्स वगैरह, हाँ। जो माशाल्लाह से रफ़ा दीन भी शुरू करते हैं, और तमाम जितने भी मामलात हैं तौहीद वाले हो गए, उसके बाद ये अमीर माविया वाला मामला हो गया, हर टॉपिक पे कोशिश कर रहे हैं हम कि इस मामले को आगे बढ़ाएं, और इंशाल्लाह आगे भी मज़ीद कोशिश करेंगे। और आज स्पेशल एक क्वेश्चन था जिसके लिए यहाँ पे आना, फर्स्ट टाइम आए यहाँ पे, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी आंसर मिल गया अच्छे तरीके। ये क्वेश्चन? जी क्वेश्चन भी किया है, उसका बहुत अच्छा आंसर भी मिल गया, और आप इंशाल्लाह वो घर जाके वो क्लिप काट कर लेंगे अपने लिए। अच्छा, नहीं ये तो कहते हैं कि क्वेश्चन तो अपने बंदों के लेता, आपका कैसे क्वेश्चन ले लिया? सर, अब जिस तरह हमारा ख़ानदान है ना, या जो मेरी यूनिवर्सिटी के काफ़ी लोग हैं, वो जब देखेंगे ना कि हम लोग हैं तो उन्हें खुद इस चीज़ का आंसर मिल जाएगा कि भाई यहाँ पे लोग मोहब्बत से आते हैं। अच्छा। मोहब्बत से आते हैं, कोई अपना नहीं आप भी होता। कहीं इनके अपने बंदे तो नहीं? वो वही तो आपको कह रहा हूँ कि जो हमारे कजन वगैरह या जो हमारे से डिबेट करते हैं ना, वो जब देखेंगे उन्हें खुद आंसर मिल जाएगा इस चीज़ का, मतलब बताने की भी जरूरत नहीं है। फर्स्ट टाइम आए हो आप? फर्स्ट टाइम आया। कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, मतलब आने से पहले भी हम खुशी थी, अम्मी और हम, उन्होंने हमें, मतलब हम लोग सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के निकले, उन्होंने हमें बाहर आके, हम लोग बाइक पे हैं, 3 बंदे गीले होके आए। आने से पहले जितनी खुशी थी अभी जा रहे हैं उससे ज़्यादा खुशी है, और इंशाल्लाह अपने बाकी कजन्स को भी, बाकी दोस्तों को भी लेके आएंगे। अच्छा, जिस तरह ओपनली आप आए, मरी से आए, पिंडी से आए, आपने कहा इंजीनियर साहब को मिलना है, प्लेटफॉर्म मौजूद था, आए, शनाख्ती कार्ड दिखाया, मिल लिया, जी बिल्कुल। किसी भी बड़े आलिम दीन से मिल सकते उस तरह सर जाके? नहीं मिल सकता। अच्छा। वो मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि सलाम तक भी करना मुश्किल है, उनको देखना तक मुश्किल होता है, लेकिन उनको माशाअल्लाह थ्रेट से बहुत है ना, इंजीनियर साहब को कौन सा थ्रेट है? हालांकि थ्रेट सबसे ज़्यादा इनको है, और यकीन करेंगे इतनी खुशी, और इंशाल्लाह मज़ीद आएंगे, अल्लाह पाक इस सिस्टम को बड़ा करे, और इंशाल्लाह इंजीनियर साहब को अल्लाह पाक इतनी मज़ीद हिम्मत और तौफीक दे के ये मामला पूरी दुनिया तक पहुंचे। तो बहरहाल बहुत अच्छा लगा। जज़ाकल्लाह भैया, जज़ाकल्लाह। आज वालेकुम अस्सलाम भैया, क्या नाम है? मैं आकिब अयाज हूँ, ये मेरे छोटे भाई थे। अच्छा, माशाल्लाह। ज़्यादा इन्होंने बता ही दिया होगा, मैं सर मुख्तसर आपको बताना चाहूँगा कि देखें जी, अल्लाह जिसे चाहे हिदायत देता है, ठीक है। हमारे लिए अल्लाह ताला ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को जो है वो वसीला बनाया है,
اور ہم نے ان کو سننا شروع کیا اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے ود پیسج آف ٹائم ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے. اور کچھ ہماری اپنی کوشش بھی تھی, ہمارا اپنا بھی تھا کہ ہم اپنا عقیدہ ہمارا ٹھیک ہے کہ نہیں, کیونکہ انسان کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ سب سے پہلے عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے انسان. بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے جی. تو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد تھی, کچھ انجینئر صاحب کی ویڈیو سن کے ہمیں مدد ملی, کچھ ہماری اپنی بھی ریسرچ تھی. تو ہم جتنا شکر ادا کریں انجینئر صاحب کا وہ کم ہے. اچھا جی, آپ کو روکا نہیں, علماء نے نہیں روکا, پہلے آپ کا مکتبہ فکر کون سا تھا؟ ہمارا مکتبہ فکر بریلوی کہہ لیں, بریلوی. تو وہ تو کہتے ہیں نہیں سننا, آپ علماء کے گستاخ ہیں نا, آپ نے کیوں سنا جی؟ میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں, ہمارے خاندان میں بھی کچھ ایسی باتیں ہو گئی تھی. جب ہم نے رفع الدین سے نماز پڑھنا شروع کی تو ہمارے خاندان والے کچھ ایسے لوگ تھے جو کہتے جی بھی یہ قادیانی ہو گئے یا اپنی پٹھڑی سے اتر گئے یا مطلب گمراہ ہو گئے. تو ہم نے یہ بھی فیس کیا ہے, لیکن بات وہی ہے کہ قرآن اور حدیث سے ہم نے ریفرنس کے آگے رکھا ہے. تو کچھ جو عقل والے تھے ان کے دماغ میں پھر بھی تھوڑی بہت بات پڑ گئی ہے. اب جیسے اس ویڈیو میں جو آج کے خطاب میں انجینئر صاحب نے کہا ہے کہ جو ان کی 40 منٹ کی ویڈیو ہے جنہوں نے مجھے بتایا ایز اے ٹریلر والی, ٹھیک ہے ہاں, ہم نے کچھ لوگوں کے آگے قرآن اور حدیث کا جب ریفرنس رکھا ہے نا تو وہ دوبارہ ہمارے سامنے نہیں آئے. بالکل صحیح ہے, کیونکہ ان کے آگے کوئی بات نہیں رہتی. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ اپنی انا بیٹھ گئے ہیں کہ بھئی وہ حق جاننے کے باوجود بھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں ہم نے اس پہ عمل نہیں کرنا, کیونکہ ہمارے جو بڑے وہ یہ کرتے آئے ہیں. تو جو ہمارے خاندان والے یا عزیز و وقارب ہیں وہ دیکھ کے کیا کہیں گے جی اپنے مذہب سے یا اپنے باپ دادا کے دین سے پیچھے ہٹ گیا. ٹھیک ہے, اس وجہ سے کئی لوگ ہیں. اب جیسے میرے بھائی نے آپ کو بتایا کہ ہم لوگ مری گئے تو وہاں پہ امام مسجد تھے, انہوں نے کہا جی یہ یونیورسٹیز کے بچے ہیں, دنیاوی تعلیم ہے ان کے پاس, ان کو کیا پتا ہوگا یہ سارا کچھ. وہ ہمیں لائبریری میں لے گئے, ہم نے انجینئر صاحب کی مدد سے, اللہ کے بعد انجینئر صاحب کی مدد سے ہم نے ان کے ساتھ باقاعدہ ڈیبیٹ کیا. انہوں نے مسلم اور بخاری کو چھوڑ کے طاہر القادری صاحب کو لے آگے کتاب کو. اچھا کہتے ہیں جی یہ دیکھیں جی رفع الدین نہ کرنے کا ہے. ہم نے کہا جی قاری صاحب کوئی ہونے والی بات کریں. اب آپ یقین کریں انہوں نے ہم سے نمبر لیا, واٹس ایپ لیا کہ میں آپ کو اس چیز کا جواب دوں گا ہی دوں گا. 6 مہینے سال 2 سال گزر گئے. اب جب بھی ہم جاتے ہیں بڑے پیار سے مفتی صاحب کر کے ہمیں سلام کرتے ہیں اور ان کے پاس ابھی تک ان کو جواب کوئی نہیں آیا. ہاں جی, ویسے علماء سے بحث کیا بھی نہ کریں. ہماری تو ہم بحث نہیں کرتے, ہم صرف جب نماز پڑھنے گئے نا ہمیں انہوں نے دیکھا رفع الدین سے نماز پڑھتا ہوا, وہ ہمیں کہتے ہیں جی یہ نماز پڑھنے کا طریقہ آپ کا ٹھیک نہیں ہے, یہ وہی پہلے وقتوں میں جو بت لگ کے آتے ہوتے تھے, یہ سارا وہ سین ہے. تو پھر ہم نے ان کو جواب دیں یہ جتنی بھی آپ محنت کر رہے ہیں نا یہ عوام الناس پہ کریں, ان کے اوپر کرنے کا فائدہ کوئی نہیں. اگر ایک تو یہ کہ بیچارے مان بھی جائیں نا اور نیت کے بھی اچھے ہو, کر نہیں سکتے, پیٹ کے ہاتھوں مجبور ہیں. اور دوسرا زیادہ تو یہ بڑے چھوڑے ہوتے ہیں, یہ دل میں رکھ لیتے ہیں, بندہ چڑھا دیتے ہیں, اس لیے ان سے تو بچا ہی جائے. بالکل ایسا ہی ہے جی. نہیں ہم انشاءاللہ. باقی یہ ہے کہ ہمارے عوام بھی محنت کریں, اپنے دوست جو ہیں, اپنے کزن جو ہیں, چھوٹے بھائی ہیں, ان کو ہم نے سکھایا اور اللہ کا شکر ہے وہ بھی ہمارے ساتھ سیکھ رہے ہیں. الحمدللہ. بہت شکریہ بھیا, جزاک اللہ. آؤ جی اور کون ہے؟ وعلیکم السلام. کیا ٹھیک ٹھاک, کیا نام ہے بھیا؟ محمد کاشان فیاض. محمد کاشان فیاض. آپ بھی پنڈی مری؟ میں بیسیکلی میری کا ہی ہوں, یہ میرے کزن ہے, یہ میری خالہ کی بیٹی ہے. سب اکٹھے آئے ہو؟ ہاں جی اکٹھے آئے تھے. میں ہی بیسیکلی ان کو لے گیا, میں پہلے بھی آ چکا ہوں ادھر, تو ایک دفعہ پلان بنا تھا تو میں نے کہا میں لے کے جاؤں گا آپ لوگوں کے ساتھ. نہیں, اس دعوت کا آغاز کس نے کیا اپنے گاؤں میں؟ اپنے گاؤں میں میں اپنے خاندان کی بات کروں تو میرے سے پہلے انجینئر صاحب کو شاید کوئی جانتا بھی نہیں تھا. ہمارے خاندان آپ وہ پہلے بندے؟ ہم اپنے خاندان میں ہوں. ٹھیک ہو گیا. ان لوگوں نے بھی میرے بعد ہی اسٹارٹ کیا تھا سارا کچھ سوچنا اور سب, لیکن ان کو میں نے نہیں بتایا تھا, انہوں نے اپنے طور پہ سرچ کی, اس چیز کو لے کے چلے. اور پھر ان لوگوں کا خیر, میرا تو معاملہ ایسا تھا کہ میں بیسیکلی ایک انتہائی کٹر بریلوی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں. ابھی بھی میرے گھر کے سارے لوگ جو ہیں, ایون میرا بھائی جو ہے وہ سیفی جو سلسلے کے ساتھ اس کے ساتھ ہی ہیں ابھی تک. تو ان کا ابھی تک بحث و تکرار ہوتی رہتی ہے. اکثر وہ ویڈیوز وغیرہ, جو فیملی ہمارا گروپ بنا ہوا ہے واٹس ایپ پہ, اس پہ نا وہ پکچرز وغیرہ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں, وہ ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں انجینئر کے خلاف, انجینئر صاحب کے خلاف. تو بس وہ یہ بھی, اور میرے تایا ابو, میرے ابو, میرے چاچو, میرے آج چاچو, دو چاچو ہیں میرے, اور میری پھپھو, یہ سارے انتہائی خلاف ہیں. خیر ہمارے گھر میں پھر یہ ہوا کہ میں نے جب لوگوں کے سامنے, اپنے گھر والوں کے سامنے بات کرنا اسٹارٹ کی, مطلب انجینئر صاحب کی جتنی ویڈیوز جتنا ہم نے علم حاصل کیا, ہم لوگوں نے جتنا جو آگے پھیلانا شروع کیا, تو اس میں اللہ کا شکر ہے کافی حد تک چینج آیا ہے. جس میں میری جو بہنیں وہ انہوں نے بہت جلدی اس چیز کو آپٹ کیا. میرے ابو بھی تھوڑا بہت الحمدللہ عقیدے کے حوالے سے وہ ٹھیک ہو گئے. پہلے یہ تھا کہ وہ بزرگوں کا وہ مطلب وہ جو قبر پرستی والا جو فیکٹر تھا وہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے وہ ختم ہوا ہے. پھر ابھی میرے یہ جو ہیں کزن, ان کے والد صاحب اللہ ان کو جنت بخشے تو وہ فوت ہوئے. تو ان لوگوں نے ماشاءاللہ سے بڑا اچھا کام کیا. ابھی تک ہمارے خاندان میں یہ چیز ہوتی ہے, چالیساں وغیرہ اور اس طرح کی جتنی بھی بدعتیں انہوں نے نہیں کرائی. یہ ہمارے خاندان کے مطلب نہ بریلوی مطلب خاندان پرانی جو ریت اور رسم و رواج کو توڑ رہے ہیں.
ٹھیک ہوگا. یعنی آپ کے جو گاؤں گھر کے وہ بڑے بزرگ ہیں وہ ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ اصل بندہ تو یہ ہے جس نے آگ لگائی ہے. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. اس کے بعد پھر میرے ایک چاچو کا بیٹا ہے, 2 چاچو کے بیٹے ہیں, وہ بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے وہ سنت کے مطابق نماز پڑھنا اور جو دلیل کے ساتھ بات کرنا, اب اس چیز کو وہ اس طرف آ رہے ہیں ماشاء اللہ. فرسٹ ٹائم آئے ہو آج آپ بھی؟ نہیں, میں پہلے آ چکا ہوں, میں بلکہ جو برف خانے کے اوپر جو تھی نا وہاں پہ بھی آ چکا ہوں. چلیں, بہت شکریہ. آئیں جی, اور کون ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم کیا نام ہے بھیا؟ قاسم علی. قاسم علی. قاسم علی کدھر سے آئے ہو؟ جی سر, میں سیالکوٹ سے بلانگ کرتا ہوں. میں 4 سال اوورسیز رہا ہوں اور میں ادھر ہی الحمدللہ اس پلیٹ فارم کو سنتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اور یہ مطلب کہ فرقہ واریت میں ایک قلعہ ٹھوکنے والے کام کر رہے ہیں, مطلب کہ ایسے ہی ایسے ٹھوک دیا. بالکل ٹھوک دیا ہے, ٹھوک دیا, منڈی ٹھوک دی. اور اصل بات یہ ہے کہ ان جو بھی بات کرتے ہیں دلیل کے ساتھ کرتے ہیں, قرآن و سنت اور دلیل کا حوالہ دے کے بات کرتے ہیں. بس ان کی اس پلیٹ فارم کی وجہ سے میں اسی لیے متاثر ہو کے واپس آیا ہوں, اور میں واپس بھی جا رہا ہوں, دبئی واپس جا رہا ہوں, اور میری بہت خواہش تھی کہ میں اکیڈمی وزٹ کروں, اور الحمدللہ وزٹ کر کے بہت اچھا لگا. اچھا قاسم بھائی, آپ کا پہلے مکتبہ فکر کون سا تھا, مسئلہ کون سا تھا؟ مسلک میں نے تقریباً, گھر والے تو تھے نا کوئی چیز کو لے کے؟ گھر والے تو بریلوی ہی تھے. اچھا, دبئی جانے سے پہلے آپ تھے درباروں وغیرہ کا یہ سارا کچھ تھا, یا اس وقت بھی کوئی نہیں تھا دین سے انٹرسٹ؟ مطلب کچھ خاص انٹرسٹ نہیں تھا, لیکن جب اس پلیٹ فارم کو دیکھا تو پھر میں مضبوطی سے ادھر ہی ہو گیا. اچھا, پھر وہ آپ کو سمجھ آ گئی کہ یار یہ بات. جی بالکل, کیونکہ شعور جاگا. ہاں جی, میں نے دیکھا کہ اکثر میں دیکھتا رہا ہوں بیانات, بس کہانیاں اور آوازیں اور بولنا ہی ہوتا تھا, لیکن کوئی خاص دلیل نہیں تھی ملتی. بس یہ پلیٹ فارم ایسا ہے کہ جہاں پہ مجھے دلیل کے ساتھ, قرآن و سنت کے ساتھ باقاعدہ دکھا کر, حوالہ دے کر بتایا گیا کہ فلاں چیز ایسے ہے, یہ چیز ایسے ہے, باقی سب کہانی ہی تھی. فرسٹ ٹائم آئے ہو؟ جی. کیسا تھا آج کا پروگرام؟ بہت اچھا, اور میری دعا ہے کہ اللہ ہر گھر میں انجینئر محمد علی جیسا بیٹا دے. آمین, جزاک اللہ بھیا. آئیں جی, اور کون ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھیا؟ محمد سلمان. محمد سلمان. سلمان بھائی کدھر سے آئے ہو؟ راول پنڈی سے. راول پنڈی سے. جی جی. اکیلے آئے؟ نہیں, اپنے بھائیوں کو ساتھ لے کر آئے ہوں. چھوٹے بھائی ہیں آپ کے؟ جی جی, چھوٹے ہیں. تعارف کیسے ہوا انجینئر صاحب کا, کب ہوا, اور نیگیٹو تھا یا پازیٹیو تھا؟ تعارف الحمدللہ میرے والد صاحب ان کو سنتے تھے. اچھا, ماشاءاللہ. ہاں, انہوں نے پھر ویڈیوز لگانا شروع کی, تو پھر ان سے ہم لوگ آگے نکل گئے اس معاملے میں. دعوت و تبلیغ بھی میں نے بہت اچھی کی الحمدللہ, دوستوں کو بھی بہت قائل کیا اس معاملے میں, اور الحمدللہ پازیٹیو رسپانس ملا ہے بہت زیادہ. اچھا, والد صاحب سنتے تھے. یہ بڑے کم سننے میں آتا ہے کہ بچے کہہ رہے ہیں ہمارے باپ سنتے تھے. ایسے ہی میں تو یہ ہوتا ہے کہ بچے کہتے ہیں ہم سنتے تھے, باپ کو بتایا تو وہ مان نہیں رہے. اچھا, جو بابا سنتے تھے, اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے وہ کٹر کوئی نہیں تھے کسی بھی فرقے میں؟ نہیں, وہ کون سا تھا مسلک تھا, کون سا پہلے؟ کیونکہ میرے والد صاحب ابراڈ ہوتے ہیں, سعودی عرب میں ہوتے ہیں. ہاں, اس لیے تو اب پاکستان میں ظاہر بریلویت کا راج چل رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہاں سے جو بندہ باہر جاتا ہے وہ جب ادھر کے طور طریقے دیکھتا ہے, اس کو تھوڑا مائنڈ کھل جاتا ہے کہ بھائی ادھر کیا ہو رہا ہے, ادھر کیا ہو رہا ہے. تو ادھر وہ جا کر اہل حدیثوں سے تھوڑا متاثر تھے. ایسے کا اب آپ کو پتہ ہے کہ اہل حدیث عوام جو ہے وہ باقی عوام سے تھوڑی بہتری ہوتی ہے, حق بات قبول کرتی ہے. اب ظاہر سی بات, ان کے سامنے ویڈیوز وغیرہ علی بھائی کی آئی ہیں تو وہ متاثر ہوئے ان سے. انہوں نے سوچا چلو گھر والوں کو بھی دکھائیں. پھر الحمدللہ اس سے آئیے بہت پازیٹیو چینج آیا ہمارے پاس. جب سننا شروع کیا آپ نے تو معاشرے میں ایک تلخ پہلو بھی ہوتا ہے, فیملی میں بھی ہو سکتا ہے, سننے کو ملا کچھ؟ بہت کیا ملا. یعنی میں ابھی بھی میں پورے خاندان میں سمجھ لے کہ ایک طرح سے مجھے رافضی کہا جاتا ہے. اچھا. اور شیعہ کہا جاتا ہے مجھے. ایون کہ میں ایک واقعہ بڑے مزے کا کہ میں عصر کی نماز پڑھ رہا تھا مسجد میں, دیوبند کی مسجد تھی میری گلی میں بالکل. تو وہاں پر عصر کی نماز کا ٹائم تھا, تو اب ہم جو سورہ فاتحہ ہے وہ عصر کی نماز میں پڑھتے ہیں, اور جو حنفی ہیں وہ پیچھے مقتدی میں پڑھتا. وہ بالکل ایسا ہی ہے. تو میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا اپنی, تو ساتھ ایک بندہ میرے مولوی صاحب مارے میں کہ بھائی یہ کیا ہو گیا. میں پریشان. اب ظاہر سی بات ہے اس ٹائم تو تقریباً 3-4 سال پہلے کی بات ہے. جب نماز سلام پھیر دیا تو اس نے, تمہیں شرم نہیں آتی, اتنی اونچی اونچی تم سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے. میں بالکل خاموش سر نیچے کر کے میں اپنے تسبیحات پڑھ رہا 33 دفعہ سبحان اللہ. تو میں اب ظاہر سی بات ہے میں کنفیوز ہوئی, میں کیا کروں. اب پوری مسجد والے سب نظریں مجھ پر. تو اب پھر اس کے بعد میرا دل اتنا متنفر ہو کہ بھائی یہ کیا ہے, یہ مسجد میں جانا بھائی, یعنی ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے, بچہ دماغ ہوتا ہے. اب تو اللہ کا شکر ہے کہ پہلی صف میں جا کر رفع جائیں کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں نماز. اللہ کا شکر ہے کہ ڈر شر ہے ہی نہیں. اب جو متھے آتا ہے تو سیدھا کر دیتے ہیں. لیکن ایک دل میں تھا کہ یار اب اس مسجد میں نہیں جانا, کیونکہ ایک بری ایٹیٹیوڈ دیکھا میں نے ان کا.
तो उसमें काफ़ी नहीं, किसी और में से जानना तो मस्जिद ऐसे, में। हाँ जाना मस्जिद में, ठीक हो गया, ठीक हो लेकिन गया। अल्लाह का शुक्र है अब उसी मस्जिद में भी जाता हूँ, पहली सफ में जाकर रफ़ैदान के साथ नमाज़ पढ़ते हैं, सही हो गया। छोड़ा नहीं है कुछ भी अल्लाह का। फर्स्ट एक्सपीरियंस है यहाँ पे? नहीं, मैं पहले आया था अपने भाइयों को, ये मेरा कज़न है, इसको लेकर आया हूँ, इनका मूड था विज़िट का, तो मैंने बोला चलो, एक मेरा कज़न लाहौर से है, तो अब मैं इनको लेकर आया कि चलें अली भाई से मिलवा लेते हैं इनको भी। ठीक हो गई, चले, बहुत शुक्रिया भैया, जज़ाकल्लाह। और वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भैया? शहरोज़ ज़फ़र। शहरोज़ भाई किधर से आए हो? मैं कोटली से आया हूँ। कोटली? जी, कोटली आज़ाद कश्मीर से। अकेले आए? नहीं, मेरी फैमिली भी इधर होती है, अभी न्यूली शिफ्ट हुए हैं यहाँ पे मीरपुर में। अच्छा, मीरपुर में? नहीं, एकेडमी में अकेले हो? एकेडमी में मेरा दोस्त साथ आया हुआ है। 2 बंदे आए हो? हाँ जी। कैसा था सफ़र? बहुत अच्छा। मैं तो दूसरी बार में, पहले एक पुरानी एकेडमी में आया था मैं, जो बर्फ़ खाने के ऊपर थी। ठीक है। अभी दूसरी बार मैं इसको लेकर दोस्त के साथ आया हूँ। इनके तारुफ कब हुआ इंजीनियर साहब का, जो आप? इंजीनियर का तारुफ तकरीबन हो गया मुझे 2015 में, 14-15 में मुझे हुआ था। पुराना ही? हाँ, पुराना हुआ था, लेकिन हुआ बुरा था। अच्छा, हाँ क्या जी। सुन लिया था? सुना ये कि जनाब एक नया फितना आया है, ठीक है, कादियानी भी बोला जा रहा था, इनको सब कुछ बोला जा रहा था। मैंने पहले कोई नया फ़िरका, मतलब कि इंजीनियरिंग फ़िरका आ गया। इंजीनियरिंग फ़िरका? हाँ, इंजीनियरिंग फ़िरका नया आ गया। कौन सा फ़िरका है ये वाला? मैं तजस्सुस हुआ, मैं पूछूँ ये है क्या, देखूँ क्या चीज़ है। जब मैंने इनकी वीडियोस खोली तो सबसे पहली वीडियोस इनकी आई थी कब्र में 3-4 सवाल। सही है, ठीक है। तो फिर वहाँ से जो है ना मेरा वो सफ़र शुरू हुआ, वीडियोस देखना शुरू की मैंने, फिर बाहर भी खाई है मैंने। अच्छा, हाँ जी, मस्जिद के इमाम से। वो क्यों? रफ़ादान की वजह से। अब जरूरत उसने मारा? जी बिल्कुल, उसने मुझे मारा कि इस बात में नया ईसा मसीह का केस शुरू हुआ था कोई, तो धरने दे रहे थे सारे। तो मेरे जो वालिद साहब हैं ना वो कट्टर बरेलवी हैं। अच्छा। वो अल्लाह जन्नत से पूरे फौत हो गए हैं वो। तो वो करते थे नॉर्मल नमाज़ पढ़ते थे हनफियों की तरह। तो मेरे साथ मेरे वालिद साहब नमाज़ पढ़ रहे हैं, वो हाथ नीचे करके, तो मैं यहाँ पर बांध रहा हूँ, तो ये चीज़ हजम नहीं हो रही थी। तो वो रोज़ मना किया करें वालिद साहब को भी, लेकिन चलो मेरे जो वालिद हैं ना वो थोड़ा टॉलरेंस वो थी उनके अंदर। अच्छा, इनके अंदर नहीं थे। वो फोत हुए हैं ना, तो वेरी नेक्स्ट डे मैं गया हूँ वहाँ पे मस्जिद में दोबारा नमाज़ पढ़ने के लिए। तो उस मौलवी ने ये भी नहीं देखा कि अभी भी डेथ हुई है वालिद, तो मुझे कह रहे हैं कि मक्खियों क्यों मार रहे हो उधर मस्जिद में आकर। उनके क्या मक्खियाँ मार रहा हूँ? कहता है तुम्हें नहीं पता कि वहाँ पे जो है ना ईसा मसीह का केस जो है ना चल रहा है, तो वहाँ पे जितने भी गुस्ताख के लिए हम निकले हुए हैं बाहर, तुम मक्खियाँ मारने के लिए यहाँ पे आ जाओ, तो वहाँ पोल पे नहीं आ सकते। मैंने कहा हम मक्खियाँ मारने वाले तुम जैसे मौलवी से बेहतर ना, जो नमाज के टाइम पे रिक्शों पे बैठ के जो है ना वो पैसे कमा रहे होते हैं। उनका वो रूट ऐसा था वो, ठीक है। जमात के टाइम वो खुद यहाँ मौजूद नहीं होते थे, इनके वो मस्जिद उनके अंडर थी, लेकिन खुद मौजूद नहीं हुआ करते। जिसका दिल करता है वो जाके जमात करा देता है, ठीक है। तो उस बात, हाँ जी। ये कोटली मेन शहर है या पीछे कोई बैकवर्ड एरिया क्या है? नहीं, कोटली मेन शहर है। अच्छा, उसके उस एरिया की बात हो रही है। अगार शरीफ। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। तो उन्होंने ये किया कि वो उतरे हैं रिक्शे से, तो मुझे मारना शुरू कर दिया ने वहाँ पे। ये मस्जिद के बाहर का वाक़या? मस्जिद के बाहर का वाक़या। अच्छा, ठीक है। तो मारना जब उन्होंने शुरू किया तो मेरे जो है ना, मैंने अपने बड़े ताए को कॉल की है कि आज ये मामला हुआ है। फिर उन्होंने आके जो है ना उनसे बात की, मस्जिद कमेटी भी बैठी है। उन्होंने कहा कि इनका कोई हक नहीं बनता ऐसे मारने का बच्चे को, कोई हाथ छोड़ के नमाज पढ़े ऊपर बंदे या रफा दैन करे या हाँ, मारना हक नहीं बनता आपका। तो फिर यह कि उसके बाद अभी तक ऐसा मेरे साथ वाक़या हुआ नहीं है। लेकिन है कि सफ़र जो है ना मुश्किल होता है। मैंने काफ़ी दोस्तों को जब मैं आगे वो बताता हूँ ना कि ये बातें मिर्ज़ा साहब से सुन के, तो मानते नहीं हैं, ठीक है। वो कभी शिया कह देंगे मुझे, कभी कह देंगे जनाब तुम गुस्ताख हो, ये है वो है। फिर दलील देने पे भी लोग अक्सर नहीं मानते, मुश्किल हो जाती है। लेकिन जो अहले हक होते हैं वो कबूल करने वाले होते हैं, वो ऐसे ही ठीक है। उनको बस सिरा पकड़ाना पड़ता है, वो खुद ही आगे चलना शुरू हो जाते हैं। अब कुछ जिद में आ जाते हैं। हिकमत से हमेशा आपने दावत देनी है। हाँ जी, बाकी हिदायत अल्लाह ने देनी है इंशाअल्लाह। बाकी फैमिली का क्या स्टेटस है? बाकी फैमिली मेरी कट्टर बरेलवी है। भाई मेरे जो है ना अभी न्यूली रिवर्ट हो गए, इसमें साइड हो गए, ठीक है। दावत रखो। हाँ जी, मेरे दोनों भाई वो बड़े हैं, वो स्टार्टिंग में बहुत खिलाफ थे मेरे, ठीक है। वो दोनों फॉरेन में होते हैं, एक इटली में होता है, एक इंग्लैंड में होता है। तो वो दोनों बहुत खिलाफ थे। वो तो उनके लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन अभी जो है ना वो माशाल्लाह दोनों इसी जो है ना आ गए, इसी लाइन पे आ गए हैं कि जो है ना अगर कोई फिरका हमारा नहीं होना चाहिए, ठीक होना चाहिए यार, चाहिए। तो ईद पे अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो गई तो ईद उनकी। तो पहले तो मामला बहुत ख़राब था, हमारे घर का जो सीधी सी बात है बहुत ख़राब था, ठीक है। ये गोश्त पाक को पुकारना सारे मतलब ईद से जो है ना आ रही थे सारे, कोई चक्कर नहीं था ऐसा वैसा। इवन के जो है ना नबियों का दर्जा दिया हुआ था, खुदा का दर्जा दिया हुआ था बुजुर्गों को। अब छोड़ो वो गोश्त पाक को छोड़ दें, अपने जो अपने मारे जाते हैं इनके
अपने जो बाप दादा को ही हो गया उनको भी उनकी कब्रों पे जाके वो ऐसे साबित कर रहे हैं कि जनाब वो अंदर बैठे में मेरी माँ वो फरिश्ता तो है नहीं, मेरा बाप फरिश्ता भी नहीं है, ना मेरा दादा फरिश्ता था, अब उनके पास जाके मैंने क्या लेना है, मैंने तो उनके लिए मकसद की दुआ करनी है। सही बात है। तो ऐसा वैसा वहाँ पे मैंने ये सीन बहुत देखा है, ठीक है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा यूथ चेंज हो रही है, ठीक है। मेरे काफ़ी जो क्लासमेट्स थे जो है ना फेलोज थे, उसके बाद कोलीग्स जो मेरे साथ काम करते हैं वो काफ़ी चेंज हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चेंज हुए हैं। अब तो मिर्ज़ा साहब की जो है ना पहचान भी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह हो गई है, लेकिन वही मिर्ज़ा साहब की बात आ जाती है कि इनकी पहचान हमेशा जो हुई है ना एक बुरी हुई है स्टार्टिंग में, जिसको भी हुई है, ठीक है। बाद में जब उसने सुनना शुरू किया है तो वो आज बहारें भी तो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह आज देखे बहारें भी बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा वाहिद बंदा आपने देखा होगा जिसका 90% 98% तारुफ नेगेटिव हुआ है, 98% यही बात। आप अच्छा करवाने की कोशिश भी करते हैं ना उसको, तो वो कहते हैं नहीं ये बंदा ही गलत है, लेकिन जब जिसने सुना ना वो आगे, जब जिसने सुना पूरा लेक्चर, जब उसने सुना ना तरीके से 1 घंटे की वीडियो देख लिया, आधे घंटे की देख ली है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आ गए। इसलिए जो सियाने उलमा है ना वो बिल्कुल ही कहते हैं कि इसको सुनना भी नहीं है, सुनना भी नहीं है, नहीं तो आप गुमराह हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी गुमराही अल्हम्दुलिल्लाह सबको दे, आमीन। ये गुमराही जो है अल्लाह सबको दे। बहुत शुक्रिया भैया, जज़ाकल्लाह। और कौन है? वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है भैया? मेरा नाम शहरियार अल्ताफ़। शहरियार अल्ताफ़, किधर से हो? मैं रावलपिंडी डोगरते से आया। डोगरते से जी। कितने बंदे हो? हम 5 बंदे। खैरियत थी? कैसे आना हुआ? फर्स्ट टाइम आया था तो आज इन 4 दोस्तों को लेके आया। आप लेके आए हो? जी। आपको इंजीनियर साहब का तारुफ कब हुआ, कैसे हुआ? ये तकरीबन मार्च अप्रैल 2023 की बात है, तो उस वक्त सुनना क्या सुना था इंजीनियर के बारे में? अच्छा बुरा? क्या बुरा ही शुरू में हुआ था, पॉजिटिव तारुफ बाद में ठीक हो गया था। सुनना ठीक कैसे हुआ? कुछ सुना उनका वीडियो सुनी थी, तहकीक की है, तो उसके बाद कौन सा मसला था जिसमें आपको क्लियर हुआ? नमाज का ही, रफ़ा ज़हन का ही हमारा मसला था, तो हमें तो गाइड किया जाता था कि भाई ये एक बार ही हुआ है और मक्खियाँ मारना, तो फिर हमने तहकीक की अपने हिसाब से, तो फिर वहाँ से हमें एग्री हुई इंजीनियर भाई इंजीनियर ठीक है जी, यहाँ से ठीक। और जब इंजीनियर साहब को सुनना शुरू किया तो मुखालफत का भी सामना करना पड़ा घर वालों से, कोई दोस्तों से? अभी तक हो रहा है। क्या कहते हैं? सुबह भी आए हैं तो क्या कहते हैं? कौन कौन करता मुखालफत? पूरे ख़ानदान वाले, मोहल्ले वाले, इलाके वाले, जो भाई आप तो मिर्ज़ाइयों की पैरवी करते हो, कादियानी है वो, तो बहुत मुश्किलात है। बहरहाल खुद मुख्तार। तो आप टैकल कैसे करते हो? इंजीनियर साहब की वीडियोस देखती हैं? जी। इंजीनियर साहब बताते हैं हिकमत का, नहीं वो ठीक है, लेकिन वो हिकमत का भी बताते हैं ना कि दावत हिकमत से देते हैं ना, तो आप उनको बताओ कि मैं कदियानी हूँ या आप कदियानी हो, नमाज तो आप पढ़ते हो। मगर वो सुनते नहीं है। जब हम उनको बात बताते हैं जो भाई कुरान और हदीस की हमें आप बात बताएं, हम ना माने तो फिर आप बात करें। जब हम बात करते हैं तो सुनने वाला कोई नहीं है। बहरहाल सबका अपना अपना हिसाब है, तो हम अपनी बात से एग्री हैं। आपको क्या लगता है, आप आज फर्स्ट टाइम आए हो? मैं सेकंड टाइम आया हूँ। मैं पिछली बार भी दोस्त को लेके आया था, तो अभी 4 दोस्त हैं, तो 2 कज़न है बीच में और 2 दोस्त हैं। ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया भैया। जी भैया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया आपका? मंसूर अहमद। मंसूर भाई, आप भी साथ हो? सब साथ हो? क्या नाम है आपका? बिलाल। बिलाल। आपका? मोहम्मद अदील। मोहम्मद अदील। अदील। आपका? एहतिशाम आरिफ। एहतिशाम। अच्छा जी, बिलाल भाई, मंसूर भाई, सॉरी मंसूर भाई, आप भाई आपको लेके आया? जी, ये लेके आए हैं। अच्छा। और तकरीबन साल कज़न हो, दोस्त हो, भाई हैं? कज़न है हम 3 कज़न हैं। हाँ, ये दोस्त हैं 2। अच्छा, आप बताएं, जब इन्होंने आपको दावत रखी आपके आगे, इन्होंने रखी आपको पहले भी इंजीनियर साहब का तारुफ था? तारुफ इस वजह से था कि हमारे मोहल्ले के जो मौलवी हज़रात हैं ना, वो इंजीनियर साहब को बहुत बुरा भला कहते थे, और काफ़ी टाइम मैंने सुना मैंने देखा, सोचा कि एक बार मैं देखूँ तो सही वो क्या रहे हैं, कि हर जगह से उनको गालियाँ पड़ रही हैं। तो मैंने जाके सुना, तो उसके बाद फिर मैंने किसी और को नहीं सुना। जब उनको इससे पहले आप क्या मतलब सोच थी, क्या कायद थे आपके इंजीनियर साहब के बारे में? नहीं, स्कूल ऑफ थॉट क्या था, मकतबा फिक्र क्या था? बरेलवी कायद थे? बरेलवी हनफी बरेलवी। हाँ जी, हमारा जो ज़्यादा कट्टर थे ज़्यादा या बस नॉर्मल थे, ज़ियारतों वगैरह पे जाते थे, कभी कभार चले गए। बस ये भी है कि उलमा ने रोका और आपने कहा मैं सुनूं एक दफ़ा इंजीनियर को, सुना? हाँ, सुनना। उन्होंने फिर क्या नतीजा निकला? नतीजा देखिए आप आपके सामने, हम बारिश में बाइक पे आए हैं माशाल्लाह। अच्छा, जब आपने सुनना शुरू कर दिया फिर मुखालफतें भी आई होंगी? मुखालफतें भी ऐसी हैं कि घर से आई हैं, मुर्तद बोला गया है। अच्छा, और आपको मुर्तद, खंजीर, कादियानी फैमिली वालों ने बोला है, लेकिन शुक्र है कि इंजीनियर साहब ने ऐसा हमारे माइंड में किया है ना कि हमें सब्र भी
انہوں نے صبر کی بھی تلقین دلائی ہے کہ کسی نے کچھ برا بولنا ہے نا صبر بھی کرنا صحیح ہے جی. تو اس وجہ سے انہوں نے بول کے نا اب وہ بھی تھوڑا تنگ آ گئے ہیں کہ یار یہ تو سننے والا نہیں ہے, اس کو اصل سمجھ آ گئی. اللہ کرے سب کو سمجھ آئے, مرنے سے پہلے دین کی صحیح سمجھ آ جائے. آخرت کی زندگی بہت لمبی ہے, یہ تو کچھ سال, یہ کیا پتہ ہم ادھر سے بھی نیچے جائے کہ نہ. صحیح بات ہے جی, بالکل صحیح بات ہے. اللہ کرے سب کو صحیح دین کی سمجھ آ جائے. آج آپ فرسٹ ٹائم آئے ہیں؟ جی فرسٹ ٹائم آئے. انجینئر صاحب کو لائیو پہلی دفعہ فیس ٹو فیس دیکھا سنا, کیسا تھا؟ بہت ایکسپیرینس کیسا ہوا؟ بہت جیسا سوچا تھا نا اس سے بھی بہت زیادہ مزہ آیا. 2000 گنا گستاخ ہے, کہتے ہیں گستاخ ہے, اور یہ سر جی گستاخ ہے نا جو ان کے جو جھوٹے بابے بنائے ہوئے ہیں ان کا گستاخ ہے, ڈنکی کی زور پہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. نہیں وہ تو کہتے ہیں زور پہ ہے. تو جو جیلی انہوں نے بنائی ہوئی, جیلی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں, تو ان کے تو پھر گستاخ ہیں. ان کے نہ ہوں تو پھر ہم کیوں آئے ادھر؟ یہی بات ہے. اصل بات وہ بتاتے ہیں تو پھر سب کو چبھتی ہے نا. اصل بات سب کو چبھتی ہے, کسی معاملے میں بھی ہو. دین کے علاوہ بھی کوئی اصل بات جو بھی بتاتا ہے سچائی نہیں سن سکتا کوئی. یہی بات ہے. چلیں جی, بہت شکریہ بھیا, جزاک اللہ. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.